हम लोग मसीह में चले गए। जब मसीह ने शैतान को हराया तो हमने, When Christ defeated the जब devil, मसीह मर के we जिंदा defeated हुआ the तो हम मर के, devil. When Christ was जब resurrected मसीह from the पिता dead, के दाहिने हाथ बिठाया गया तो When- हम भी मसीह के साथ, when Christ was made to sit on क्योंकि the right hand जो of the कुछ Father, मसीह के साथ हुआ वो आज आपकी और मेरी रियलिटी है। पुट Colossians 3:3, कुलोसियों 3:3, you have access to the throne room of God. आपके पास स्वर्ग के सिंहासन का एक्सेस है। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा, You have access to the throne room of God. आपके पास स्वर्ग के सिंहासन का एक्सेस है, For you died क्योंकि तुम मर गए and your life is hidden with Christ in God. और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। आगे, oh hallelujah. When Christ who is our life appears, then you will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Oh hallelujah. Okay, put verse 2. I want to show you something. This is what God said to me that night. ये है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा। Set your mind on things above. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, Because पृथ्वी पे एक अलग हकीकत है मगर स्वर्ग में एक अलग हकीकत है। because there is a separate reality on the earth and a separate reality in heaven. कितने लोग यहाँ पे थे उस फास्टिंग प्रेयर में जब शोफार की आवाज हम सब ने सुनी? How many people were there on the fasting prayer when we heard the sound of the shofar? What was that? वो क्या था? Heaven invading earth. स्वर्ग पृथ्वी में इन्वेड करता हुआ। When we started this church, supernatural occurrences of angels and signs and wonders was very normal. जब हमने कलीसिया शुरू की थी तो अलौकिक चिन्ह चमत्कार होना, स्वर्गदूतों का आना बहुत सामान्य बात थी। And hear this today. और सुनिए आज, There are thousands of angels. God told me yesterday when I was praying. कल There are जब मैं- thousands of angels in this meeting right now. कल जब मैं प्रार्थना करता प्रभु ने कहा हजारों स्वर्गदूत इस मीटिंग में इस समय। The problem is not that devil is too big. The problem is our mind is still on earthly things. दिक्कत ये नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा है, पर दिक्कत ये है कि हमारा जो मन है, हमारी चेतना अभी भी पृथ्वी की बातों पे लगी है। Okay? एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था. And I'm just telling you some things, okay? One day I was sitting in my room. I usually don't share my encounters. मैं अक्सर But मैं अपने- आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ. मैं अक्सर अपने एनकाउंटर्स नहीं बताता, I'm sharing something. I just took this scripture. Set your mind on things above. मैंने ये वचन लिया, अपना मन ऊपर की बातों पर लगा। अब लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि स्वर्ग में क्या है. Some people say I don't know what is in heaven. अरे रेवलेशन खोलो, Open the book of उसमें Revelation. थ्रोन रूम है. It has the throne Take room. that chapter वो चैप्टर लो, and start to meditate. उसको मनन करो। So I began to meditate. I am seated in front of the throne मैंने room. मनन करना शुरू किया, मैं सिंहासन के सामने बैठा हूँ, Because I am and so are you. क्योंकि मैं बैठा हूँ और आप भी बैठे हो। क्योंकि बाइबल कहती है. The Bible says so. Amen? But some believe it and some don't. कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। So जैसे मैं उस पर मनन करने लगा, As I began to meditate on it, as I became aware, suddenly I started to see the veil becoming thinner in front of my eyes. अचानक से मैंने महसूस किया वो पर्दा जो है वो पतला होता जा रहा था मेरे सामने। And instantly I saw अचानक मैंने देखा an angelic being standing in front of me. एक स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा हुआ, Because angels are always there. क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा Heaven is आसपास है। always there. स्वर्ग हमेशा But we हमारे are आसपास not है। aware of it. लेकिन हमें उसकी चेतना नहीं, उसका पता नहीं है। नौकर ने देखा कि सेना है. एलाइशा अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा है कि बहुत सारे स्वर्गदूत हैं वहां पे. The servant of Elisha saw the army in the physical, but Elisha in his spirit was looking at a greater army with them. Amen. इतने सारे मसीह लोग हैं जो आज सोल के द्वारा जी रहे हैं. So many believers today are living through their soul, By their emotions. अपनी भावनाओं के द्वारा जी रहे हैं। अगर उनका मन करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक If they feel like doing it, they do it. If they don't feel like, they don't. है.
We don't live by the truth. हम सत्य के द्वारा नहीं जीते हैं. Truth. You don't have to experience the truth first to believe it. In the kingdom, you believe the truth first and then you experience it. आपको पहले सत्य का अनुभव करने की जरूरत नहीं है उसको सच मानने के लिए. राज्य में हम पहले सच को सच मानते हैं तब उसका अनुभव करते हैं. यहां पे परमेश्वर ने काम पूरा कर दिया है. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे. Here God यहां has पे done the work. अभी भी दर्द है, There is still pain अभी भी here. वही लक्षण है. Still the same लगता तो symptoms. नहीं है हम चंगे We don't हैं, feel like मगर we're healed. वचन कहता है But the यहां word says- पे पूरी तरह से आप चंगे हो चुके हो. अब आपका काम यह है इसको विश्वास करके यहां से ये सामर्थ आपके शरीर में आपको प्रकट करनी है. So the word says you are healed by the stripes of Jesus. Your job is to take that power by believing on it. You have to take that power from there to your body. In your spirit you have dead raising power. आपकी आत्मा में मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ्य है. कितने लोगों ने एलाइशा की कहानी पढ़ी है कि एलाइशा की मृत्यु बीमारी में हुई? पढ़ी आपने? How many have heard the story of Elisha that he died in a sickness? वही परमेश्वर का दास जिसकी मृत्यु एक बीमारी से हुई, The same man of God who died of a sickness, बाइबल उसके लिए कहती है the Bible says for him, कि जब वो एक व्यक्ति को गाड़ रहे थे और they उनको were- नहीं पता था एलाइशा को वहां गाड़ा गया है, when they were burying a man और and they did जब not वो know, डेड बॉडी एलाइशा की हड्डियों में टच करी वो व्यक्ति जिंदा हो गया. the Bible tells that they were about to bury a man next to Elisha's tomb and they did not know that his tomb was there. When his bone touched that dead body, that dead man came back to life. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करके कहा यही आज हर एक मसीह की कहानी है. And that's what the Lord said. This is the story of every believer today. वो एलाइशा That Elisha, जिसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ्य, जिसके शरीर में इतनी सामर्थ्य कि मुर्दा वो खुद बीमारी में मर गया. whose bones had such power that dead came back to life, he himself died in sickness. I don't know why. I'm मुझे not नहीं पता saying he was a very godly man. वो एक बहुत ही But मैं क्या कह रहा ईश्वरीय हूँ? The power was there. व्यक्ति था. The सामर्थ्य थी dead उसमें. raising power was there. Bible tells it. मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य थी उसकी हड्डियों में. It was there in him. उसके अंदर थी वो सामर्थ्य. इतने सारे आज मसीह हैं जो मर गए बीमारी में, अरे उनके अंदर मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ उनकी आत्मा में थी. So many believers died in sickness, whereas the power to resurrect the dead was in them. And many times it happens because we carry offenses. और कई बार We इसलिए carry होता है bitterness. क्योंकि हम नाराजगियां ठोकरों से भरे होते हैं अंदर. और क्या होता है हमारा सोल कंटैमिनेट हो जाता है. And our soul gets contaminated. Because your soul is the gateway for the power to flow out of you. क्योंकि आपका प्राण वो द्वार है जिसके द्वारा वो सामर्थ्य आपके जीवन में बहती है. Okay, मैं लास्ट एक आयत बोलूंगा और उसके बाद Hallelujah. रोमियो 8:5 से 6. Romans 8, 5 and 6. ओके, जितने लोग जिंदा हैं बोले हालेलुया. All those who are alive say hallelujah. आमेन. जितने लोग मसीह के साथ जुड़े हुए हैं बोले हालेलुया. Those who are united with Christ say hallelujah. आमेन. जितने लोग टूटे हैं बोले हालेलुया. कोई बात नहीं, जोड़ देंगे आपको थोड़े, इसीलिए आए हैं हम आज. आमेन. आमेन. आज के बाद नहीं देखना अपने आप को आई एम ब्रोकन. I am no longer broken. I am complete in Christ. मैं मसीह में संपूर्ण हो चुका हूँ, भरपूर हो चुका हूँ. पर फिर मैं जब ये बता रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया. When I was saying this, one man came to me. कह रहा बट पास्टर जी He said, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, it's very old thing. मगर बाइबल कहती है But the Bible कि जो says टूटे हृदय वाले हैं परमेश्वर उनके निकट है. that those who are broken hearted, God is closer to them. अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है. Absolutely मगर right. परमेश्वर अब हमारे निकट नहीं है, हमारे अंदर है. But not God is not near us now. God is in us now. हाँ, और जो टूटे हृदय वाले हैं परमेश्वर उनके निकट क्यों है? And those who are broken hearted, why is God near to them? क्यों है? Why? कि टूटे हृदयों को जोड़ दे भैया. That He can mend their broken इसीलिए hearts. तो निकट जा रहे हैं उनके. That's why He's going closer to इसीलिए them. यीशु ने कहा
परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है. The Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the broken hearted. यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है बीमारों को चंगा करने के लिए और टूटे दिल वालों को वापस जोड़ने के लिए, उनको चंगा करने के लिए. भैया यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है Oh, the Spirit of the Lord is upon me कि मैं टूटे हुए उनको जोड़ दूं. that I mend the मगर मैं broken. क्या करूं, But मैं what भी can I उतना do? ही टूटा हुआ हूं. I am also equally broken. No, नहीं, you are not broken. आप टूटे हुए नहीं हो, You are complete in Christ. आप मसीह में सिद्ध हो, मसीह में परिपूर्ण हो. Amen. Say, I'm not broken. कहो मैं टूटा हुआ नहीं हूँ. Hallelujah. How can you be broken? अरे आप कैसे टूटे हो सकते हो? You are one with Christ. आप तो मसीह के साथ एक हो. अगर आप टूटे हुए हो तो वो भी टूटा हुआ है फिर. If you're broken, then he is broken too. No, you are complete in Christ. जी नहीं, आप मसीह में परिपूर्ण हो. You may feel broken. Hear this. आपको टूटापन महसूस हो सकता है, But you are सुनिए. not what you feel. लेकिन आप वो नहीं जो आप महसूस करते हो. Because some days I feel I'm unsaved. कई दिन तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने उद्धार नहीं पाया अभी तक. But do we walk by what we feel? पर क्या हम इस हिसाब से चलते हैं? हमें Did क्या you लगता है? feel it when you got saved? क्या आपको महसूस हुआ था जब आपको उद्धार मिला था? No. नहीं. मगर जो सत्य हर चीज फील नहीं करी जाती. Everything cannot be felt. Do you feel you have a brain? आपको महसूस होता है आपके पास दिमाग है? No. नहीं. But do you doubt you have? पर क्या आपको संदेह है कि आपके पास दिमाग No. है? नहीं. Say this after me. I साथ am कहो. not what I feel. मैं वो नहीं जो मैं महसूस करता हूँ. I am not broken. मैं टूटा नहीं. I am not forsaken. मैं छोड़ा हुआ नहीं. I am not weak. मैं कमजोर नहीं. I am not despised. मैं तुच्छ नहीं. I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ. I am chosen. मैं चुना हुआ हूँ. I am victorious. मैं जयवंत हूँ. I am seated with Christ Jesus far above principalities and powers. मैं मसीह यीशु के साथ ऊंचे स्थानों पर बैठा गया हूँ, सारी ताकतों से ऊपर. Hallelujah. Amen. That's why इसीलिए truth doesn't have to be felt, it has to be believed. सत्य को महसूस नहीं किया जाता, उसको मानना पड़ता है. Believe मानो you are one with Christ. कि आप मसीह के साथ एक Live out of that union. हो. उस एकता के द्वारा जियो. Amen. All right. Let's go to that scripture and then we'll pray. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं या अपना कॉन्शियसनेस या अपना माइंड वहां सेट करते हैं. For those who live according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. Set their mind on the hear this. You have a choice today. As a new creation, you can live as ordinary as you want, or you can live by the Spirit. आपके पास आज चुनाव है नई सृष्टि होते हुए. जितना साधारण जीवन जीना चाहते हो उतना साधारण जी सकते हो या आत्मा के द्वारा जी सकते हो. Right? इसीलिए बहुत केयरफुल रहो जो टैग्स आपको लोग देते हैं, That's why रिश्तेदार देते हैं या आपके थेरेपिस्ट देते हैं. be very careful of the tags that people give to you, relatives give to you, or your therapists give to you. ओ आपके बच्चे को ADHD है Oh, your child has ADHD क्योंकि आपको है. because you have. ओ आप हाइपर एंजाइटी है आपको. You have hyper anxiety. ओ आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. Oh, you have personality disorder. ओ आपको क्रॉनिक डिप्रेशन Oh, है. you have chronic depression. एंड यू विल they'll put a tag on you and you'll वो believe. आपको ठप्पा देंगे, आप लगा लोगे अपने ऊपर. No. नहीं. I am who my God says I am. मैं वो हूँ जो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ. Not what my therapist says. वो नहीं जो मेरा Not थेरेपिस्ट what कहता my है. doctor says. वो नहीं जो डॉक्टर Not कहता है. what my professor नहीं says. जो मेरा प्रोफेसर What कहता है. my God says. वो जो मेरा परमेश्वर मेरे बारे में कहता है, मैं वो हूँ. Okay? मैं जल्दी से आपको एक गवाही बताता हूँ. वैसे मैंने पहले शेयर करी है बट कई लोगों ने वो नहीं सुना.
हम लोगों के कुछ फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो आए We have some friends from Australia, they came. और एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो बहुत महंगा होता है. And it- Was it $5,000? $5,000 एक बंदे का. One person's Australian personality dollars, test. so like 3 lakh, right? Is it 60 Australian dollars right now? 60? Okay. So 3 लाख एक बंदे का वो टेस्ट का. जब कंपनीज बड़े बड़े सीईओ को हायर करती हैं तो उनको उसको बोलते हैं डीएनए पर्सनालिटी टेस्ट. It was a personality test worth 3 lakh rupees. When big companies hire CEOs, they go through that test for those people. ओके तो उन्होंने कहा कि हम ये सारे जो आप पास्टर्स हैं हम सब का करना चाहते हैं So they said we want to do ताकि this for. चर्च और अच्छे से फंक्शन कर सके. They said we want to do it for all the pastors so the church can function properly. तो उन्होंने वो टेस्ट कराया, They did that test. रिजल्ट आया. The results came. तो रिजल्ट में आया In the result it कि came. मेरा जो रिजल्ट आया वो आया कि मैं 99% क्रिएटिव और 1% डिटेल हूँ. My result came that I'm 99% creative and 1% detail. तो उन्होंने मुझे जूम कॉल में So बोला, they, on a Zoom call they told me, बोला आप कैसे कर रहे हो जो आप कर रहे हो? how are you doing what you're doing? आप तो सब भूल जाओगे, You will forget everything. आप बिल नहीं पे कर पाओगे, You won't be able to आप pay the अपना bills. फोन भूल जाओगे You'll forget your phone क्योंकि आपकी डिटेल 1% है. because your detail is 1%. तो आप तो डिटेल को आपकी बीवी को बोलो कि वो आपके बिल भरे Tell your wife to सब pay your कुछ वो bills. करे. Tell your wife to take care of everything. बिकॉज यू 1% डिटेल. क्योंकि आप 1% detail वाले हो. हम क्या करते हैं कई What do बार, we do? You know, sometimes. मैंने भी वही किया, I also did the same thing. टैग चिपकाया, They gave मैं the सबके tag. पास जाने लग गया, I went to everyone. मैं 1% डिटेल. I am 1% detail. तो अगर मैं भूल जाऊं If I आपका forget बर्थडे आपका नाम Your बुरा मत name, मानना. your birthday, मैं don't mind. 1% डिटेल. I am 1% मैं detail. 1% I am डिटेल. 1% मैं detail. 1% I am डिटेल. 1% detail. तब तक क्या हुआ Till then what happened? कि जो अभी तक नहीं हुआ था वो होने लगा. What had not happened so far started to happen. मैं कह रहा हूँ मेरा वॉलेट कहाँ है, Like where गाड़ी is की चाबी my कहाँ है, wallet? मैं Where is the सब भूलने keys? लगा. I started to forget everything. I got frustrated. मैं परेशान हो गया. और एक दिन मैं जब प्रार्थना करता तो One day when I was praying, प्रभु से अच्छी वाली डांट पड़ी I मुझे. got a good scolding from the Lord. And God said, And the Lord said, प्रभु ने कहा, did I tell you in my word that क्या- you are 1% detail? क्या मैंने अपने वचन में तुमसे कहा कि तुम 1% डिटेल हो? He said, what did I say? उसने कहा मैंने क्या कहा था? He said, does not my word say that the memory of the righteous shall be blessed? क्या मेरा वचन ये नहीं कहता धर्मी जन की याददाश्त धन्य होगी? मैंने रिपेंट किया. I repented. मैंने कहा प्रभु I said, Lord, I act foolish, मैंने मूर्खता की, forgive me. मुझे क्षमा करो. I am not 1% detail. मैं 1% डिटेल नहीं हूँ. I am 100% creative मैं- and I am 100% detail. मैं 100% क्रिएटिव हूँ और 100% डिटेल हूँ. Okay? Because the Bible says Jesus has become unto us wisdom and knowledge. क्योंकि बाइबल कहती है यीशु हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान बन गया. भूलना बंद हो गया. I stopped क्यों? forgetting. Why? Because the truth you believe is the truth you experience. क्योंकि जो आप सच मानोगे वही आप अनुभव करोगे, वही फिर से सच आप सुनो इस अनुभव बात को. The truth you believe is the truth you experience. जो आप सच मानोगे वही सच आप अनुभव करने लगोगे. फिर से सुनो. The truth you believe is the truth you experience. जो आप सच मानोगे वही सच आप अनुभव करने लगोगे. Father, पिता, sanctify them, इन्हें अलग कर, separate them इन्हें अलग कर from the word's truth, अपने वचन के सत्य के द्वारा from their truth. उस दुनिया के सच से उनको अलग कर. Separate them, उनको अलग कर, separate them. उन्हें अलग कर. क्योंकि जो सोल में ये बिलीव कर लेता है ना, यहाँ दिक्कत है. इन लोगों को डिलीवर करना बहुत मुश्किल है. Because anyone who believes in their soul that there is a problem, it's very difficult to deliver them. It's so difficult. बहुत मुश्किल होता है. No. You choose to believe. आपने माना, The work has been done. काम तो हो चुका है. The work has been done. काम हो चुका है. You have been perfected by आपको सिद्ध one किया गया है. sacrifice of Jesus. मसीह के एक बलिदान ने आपको सिद्ध कर दिया है. Amen. And let me tell you what is going to happen in the coming days. और मैं बता दूं क्या The होगा. आने days वाले are coming दिन. वो दिन आ रहे हैं when church services won't be as you see it today. जब चर्च सर्विसेज ऐसी नहीं होंगी जैसी आप आज देखते हैं.
Remember my words. मेरे शब्दों को याद रखना. There will be people who will come and they will be caught up to heavenly encounters. ऐसे लोग होंगे जो आएंगे और स्वर्गीय अनुभवों में उठा लिए जाएंगे. Amen. The days when it will be common for people to have heavenly encounters and angelic visitations. वो दिन जब लोगों के लिए सामान्य बात होगी स्वर्ग के अनुभव पाना, स्वर्गदूतों का साक्षात्कार पाना. एक बात ध्यान से सुनो. कितने लोगों ने पढ़ा है एक्ट्स में? अभी हम आगे जा रहे हैं स्टडी में, तो हम देखेंगे. How many people have read this? पतरस को जेल में डाल दिया है. Peter is in the jail. उसको मारने वाले हैं. They're about to kill him. कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर The रही है. church is diligently praying for प्रभु him. तो पतरस को आजाद. Lord, set Peter free. परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा. God sends an angel, पतरस को जेल से निकाल के ले आया. takes him out of the jail. पतरस बाहर गया. Peter went outside. पतरस दरवाजा ठोक रहा. Peter is knocking at the door now. अंदर प्रार्थना कर रहे हैं. They're praying inside. Lord, he's knocking at the door. एक छोटी सी लड़की डोर A little girl goes to the door, खोला दरवाजा. opens the door. पतरस Oh, Peter. अंदर भागी. She goes inside. अरे वो पतरस बाहर आ गया. Oh, Peter is at the door. तो लोग क्या बोले? People are saying, अरे वो पतरस नहीं, उसका स्वर्गदूत होगा. that's not Peter, it must be his angel. And they are praying. What? क्या? अगर मैं आपको बोलूं दरवाजे में स्वर्गदूत, आप सब भागोगे अभी. If I tell you there is an angel outside the door, all of you will run to see. The people are so unimpressed that there is an angel outside. They think it's an angel. लोगों को पता है कि वहाँ स्वर्गदूत है कम से कम, और वो इतना हल्का ले रहे हैं इस बात को. कह रहे हो पतरस नहीं है स्वर्गदूत. That's not Peter, that's his angel. What does that tell you? क्या पता लगता है इससे? Angelic visitations were so common in the early church. स्वर्गदूतों से मिलना उठना बैठना इतनी सामान्य बात थी चर्च के लिए. And I cannot tell you from this is one scripture that gives the hint. मगर अगर आप बहुत पहले की स्टोरीज पढ़ोगे, मतलब जो एनकाउंटर्स हुए फादर्स के, चर्च फादर्स के, हीरोज के, they shared that your angel looks like you. If you read the encounters of many fathers before you, वो बताते हैं कि आपका स्वर्गदूत आपके जैसे दिखता है. I cannot make a doctrine on this. मैं इस पे Again. डॉक्टर नहीं बना सकता हूँ. But I'm saying early church said, she said it's Peter outside. They said no, it must be his angel. मैंने कहा वो कहती है पीटर खड़ा है बाहर, वो कहते नहीं उसका एंजल होगा. You know, there have been so many times बहुत बार where people, one day one girl called me, एक बार एक लड़की ने मुझे कॉल one किया, sister called me. एक बहन ने, She was an elder sister. वो एक बड़ी बहन थी. She called me. कॉल आया She उनका. said, where are you right now? बोला आप कहाँ पे हो अभी? I said, I'm in Delhi. मैंने कहा मैं दिल्ली में She हूँ. said, no, क्या उन्होंने कहा you are नहीं in Dehradun. आप देहरादून में हो? I said, I'm not in Dehradun. मैंने कहा नहीं मैं She said, देहरादून no, में नहीं हूँ. you came in our room आप मेरे कमरे हमारे कमरे में आए right now अभी and you disappeared. और आप गायब हो I गए. said, I'm not there. मैंने कहा मैं वहाँ नहीं हूँ. So many times people will say, you came in my dream. बहुत बार लोग कहेंगे आप मेरे सपने में आए. It was not me, it was sometimes angelic beings. मैं नहीं था, कई बार स्वर्गदूत हो सकते हैं. God is bringing that supernatural awe back to the church. परमेश्वर वो अलौकिक को वापस कलीसिया में लेके आ रहा है. For you have come to Mount Zion, क्योंकि तुम सियोन पर्वत पर आए हो. to the church of the firstborn, पहले जन्मों के पहलौठों की कलीसिया में, and to innumerable company of angels. और अनगिनत स्वर्गदूतों के बीच. How would it be if your house is filled with angels? कैसा होगा अगर आपका घर स्वर्गदूतों से भरा हो? अभी तक चर्च का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया ऐसी शिक्षाओं ने. हर समय विश्वासियों को दुष्ट आत्माएं दिखती हैं. The understanding of believers has been corrupted by such teachings. They only see demons all the time. अरे दुष्ट आत्माएं बजट में हैं. The demons are in a budget. मतलब 1/3 गिराए गए थे. Only 1/3 शैतान fell. एक भी नया स्वर्गदूत नहीं बना सकता. Only 1/3 fell, and the devil cannot even create one परमेश्वर new जब demon. चाहे नए स्वर्गदूत बना सकता है. God can create new angels whenever He wants. Amen. और ध्यान से सुनो, And hear carefully. 2/3 तब भी हमारी ओर है. Even then, 2/3 are still on our side. अगर आप रेवलेशन पढ़ो अच्छे से, If you read the book of Revelation, परमेश्वर जाता भी नहीं लड़ाई करने. लोग कहते शैतान और परमेश्वर. God प्रभु doesn't कह even. रहा, प्रभु कह रहा माइकल. God tells Michael. माइकल गया केवल और शैतान को पकड़ा और बांधा उसके आर्मी के साथ. Michael उसको went. गड्ढे में डाल दिया.
tied up devil and all his army and God put him in doesn't the have pit. to join the fight. परमेश्वर को लड़ाई में उतरने की जरूरत नहीं है. हाँ, प्रभु कह रहा है तू मेरे से क्या लड़ेगा? He's saying, what will you fight with me? आप हंसोगे अगर एक बच्चा नर्सरी You का will laugh if a child, tells you like that. Amen. सो भैया दुष्ट आत्मा देखने का स्विच बंद करो So switch off और looking at स्वर्गदूत demons देखने का स्विच ऑन करो. and switch on looking at angels. हाँ, क्यों आपको हर समय सांप और बिच्छू और ड्रैगन ही दिखते हैं? Why do you always see snakes and dragons? Amen. You are new creation. आप एक नई सृष्टि हो. You have access to the most holy place. आपके पास अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने की जगह है. Amen. But this is again solid meat. ये ठोस खाना It's है. for those who want to mature in the kingdom. ठोस खाना उनके लिए है जो राज्य में परिपक्व होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं. We don't have to seek angels. हमें स्वर्गदूतों को ढूंढने की जरूरत नहीं है. We Bible forbids the worship of angels. और बाइबल स्वर्गदूतों की आराधना के लिए We मना never करती है. call angels, हम कभी स्वर्गदूतों को नहीं पुकारते, but we have to become aware about their ministry. लेकिन उनकी सेवकाई के बारे में हमें पता होना चाहिए. You should be open of the ministry of angels. स्वर्गदूतों की सेवा टहल के लिए आपको ओपन होना चाहिए. Amen. In the book of Hebrews it says that you need to entertain strangers because many have entertained angels when they did that. इब्रानी की किताब में लिखा है कि जो अनजान लोग हैं उनकी सेवा टहल करो, क्योंकि कईयों ने ऐसा करके स्वर्गदूतों की सेवा टहल की. आपको पता भी नहीं है how much angels are involved. You don't even know कितना ज़्यादा स्वर्गदूत शामिल है. क्या लिखा है? पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इस कारण के द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है. आई डोंट नो व्हाट इज पहुनाई, बट मतलब खातिरदारी की है. Do not forget to entertain or serve strangers, for by doing so some have unwittingly entertained angels or served angels. यहाँ कितने लोग हैं जो आज कहते हैं प्रभु मैं उकता गया हूँ, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे एक जीवित रिश्ता चाहिए तेरे साथ. How many people here say, I am tired of religion, I don't want religion, I want a living relationship with you, Lord. I want a living relationship with you. एक जीवित रिश्ता चाहिए खुदा मुझे आपके साथ. वरना हम भी अपने बच्चों को एक मरा हुआ धर्म देंगे. Otherwise, we'll also give a dead religion to our children. Can we all stand up, please? अपने स्थान पे खड़े हो सब. As Elisha prayed for जैसे his servant, एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की, Lord, open his eyes. प्रभु उसकी आंखों को खोल. I want to pray for you मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ that as we worship the Lord today, कि जब आज हम प्रभु की आराधना may करें, He open your eyes वो आपकी आंखों को खोलें, so that you may see your heavenly partners, ताकि आप अपने स्वर्गीय पार्टनर्स को देखें, so that you can do partnership with them.